Today we'll look at possibly the largest child grooming case since the inception of YouTube, with up to 1.6 million children being abused and the abuse taking place right here on YouTube in the public eye. The abuse of these children and teenagers, some as young as 3 years old, has been happening for 3 years, possibly longer. Once again, all right here on YouTube in videos that get views in the 6 figures. The man responsible for this industrial scale of child abuse is Junaid Akram and his team of 27. He has spent years championing children's education and children's rights. His content is always focused on children's and teenagers' needs. He is well respected and he is considered a children's mentor. He has even been hailed as a voice of the youth, as well as endorsement from many celebrities. In particular, Junaid Akram has had a US diplomat, the Prime Minister of Pakistan, come and meet him and give him interviews. Google went as far as inviting him to their Warsaw office in Poland. Now, the reason I mention these 3 people is because I believe they have not done their due diligence in carrying out a basic background check given their line of work. How does someone go from this to behaving like this with children right here on YouTube? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, you're only 16. बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि अभी आपने स्कूल से पास होना है, उसके बाद आपने कॉलेज जाना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाना है. तो आई अंडरस्टैंड दैट यू आर फुल ऑफ इमोशंस राइट नाउ. ये एज ही ऐसी होती है. तो अभी आप यूनिवर्सिटी जाने से पहले नॉर्थ अमेरिका की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लें. थोड़ा आपका दिमाग इधर उधर होगा, बट लाइक आधा मुल्क बीबीए करेगा तो जाएगा कहाँ? बाहर जाएगा. बाहर जाएगा. बाहर कहाँ जाना है तुमने? यूएसए. सीधा यूएसए? जी. किससे मिलोगे यूएस पे? डैनियल से? हाँ, बड़े हैरान हो रहे, उसको नहीं पता, शरीफ बच्चा है. My son is 3-year-old. Every time I play your video, he starts screaming, Ganji swag. That's how big you've made. Oh, so sweet. अल्लाह ताला एंड्रयू टेट को के लिए आसानियाँ पैदा करे और ट्रिस्टन को भी जल्द रिहाई दे. हमारे लिए ऑनलाइन थोड़ी है, वो लीना पॉल में अपनी चाहत ढूंढ रहा है. Now, before we get any further into this video, I just want to make something clear. Harassment of any individuals in any form is something I do not condone. I believe the people in this video are victims of Junaid Akram's deceitful ways. They have been lied to, they have been scammed by a child abuser posing and masquerading as a teacher. Before we get into the crimes of Junaid Akram, we have to look at his background, as that puts the severity of his crimes into perspective. He has amassed a following of approximately 1.2 million subscribers on just his main channel, and a total of 1.6 million subscribers across his 8 channels. So now let's look at a few clips of how this so-called voice of the youth is helping children. Firstly, let's look at Junaid Akram's management agency. There he is at the top with the yellow background, but down here, if you look closely, it says YouTube certified Google partner. So this agency is a YouTube certified Google partner. These guys are not some hack or quack. These guys are legit. They are certified by Google. They have Google's seal of approval. Here's a few thumbnails showing how much content Junaid Akram actually makes around the topic of education. Most of his content is surrounding student life and education. He does also frequently do meetups with his fans. Sometimes, as you can see in some of these thumbnails as well, he will do meetups with fans and feature them
in his videos as well. Education is the central theme of Junaid Akram. That's what he has built his entire 8-channel empire around. This is why the prime ministers of countries and international diplomats are eager to interview this man. Here's a few images of Junaid Akram meeting children in formal settings, be it childcare settings or educational settings. You will see one thing that's common in these photos. Junaid Akram will try to get physical with these children. He will try to pull the kids in close to his body. In the last 2 shots, you can see the girl that he's pulling close to his body seems so depressed that the other girls around her even look concerned. And why is this moron taking photos of orphan children, the most vulnerable of all human existence, on his phone to exploit for views? Now, Junaid Akram meeting these children wouldn't be possible without these educational establishments inviting him come and meet these children. So here's a few clips just showing how Junaid Akram goes and interacts with several different educational establishments. He is a sought after guest at these venues. This, of course, legitimizes him as a children's mentor, a children's teacher. Now, just bear in mind, many of these children will meet Junaid Akram for the first time. They will inevitably be impressed by this man who the school went through the effort of having him invited to their assembly and to give a talk. They will then go home and Google this man. What they find we'll look at later on in the video. लर्निंग फैक्ट्री का इनकाद किया गया है जहां पे ना सिर्फ जरूरतमंद खवातीन बल्कि नौजवान लड़कियों को भी स्किल बेस्ड लर्निंग देने के साथ साथ उनको माशी तौर पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। इस सफर का आगाज होता है 2010 में डाउ यूनिवर्सिटी में जहां पे मुतवस्सित तबके से ताल्लुक तो TDF घर रीच्ड आउट टू मी। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप इस जगह पे कुछ कर सकते हैं, तो मैंने उनको आइडिया दिया कि देखें मेरी ऑलरेडी एक लाइब्रेरी चल रही है सक्सेस फैक्टर डिफेंस में, अगर आप मुझे अलाउ करें एक कमरा दे तो मैं इस पर लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ। सो दे ग्रेशियसली एक्सेप्टेड माई ऑफर। उन्होंने मुझे एक कमरा दिया और फिर हमने जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह नॉवल आइडिया की दूसरी ब्रांच यहाँ इनॉग्रेट की है। और जो है जैसे कि पहली लाइब्रेरी हम रन कर रहे हैं 1993 से, जब मैं 5 साल पहले भी आया था उस वक्त भी ये आबोताब से मौजूद था और यहाँ पे लड़के लड़कियाँ रिगार्डलेस ऑफ उनका क्या बैकग्राउंड है वगैरह, यहाँ पे बच्चे तालीम लेते हैं कंप्यूटर की बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की, और लैंग्वेजेस के ऊपर दूसरी ट्यूशन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे देते हैं बहुत ही मामूली सी कॉस्ट पे। हाँ भाई क्या हाल है भैया? हमने हमेशा सुना है पाकिस्तान में बड़ा यूथ है और बहुत टैलेंटेड यूथ है और बड़ा पोटेंशियल है, प्रोवाइडेड अगर उनको सही गाइडेंस मिले और सही राह रास्त पे लगाया जाए। तो इस वक्त मैं यहाँ बनो काबिल के एक कैंपस में मौजूद हूँ नाज़ाबाद में। यहाँ मुझे एक 8 क्लास की बच्ची मिली है जो कि बहुत ही टैलेंटेड ग्राफिक डिज़ाइनर और माशाल्लाह 6 फिगर्स में वो कमाती हैं। तो आपकी उम्र कितनी है? 14 आपके क्लाइंट्स दुनिया भर में हैं जी, अमेरिका से भी आपके क्लाइंट हैं। कौन सा मंथ आपका हाईएस्ट स्कोरिंग था जहाँ पे आपने अच्छे खासे डॉलर्स? मेरा जो 3rd मंथ था वो काफ़ी हाईएस्ट कोई था। आप फिगर बता सकती हैं इफ यू आर कंफर्टेबल? $600 $600 प्लस। Now, the teachers inviting Junaid Akram to their schools to give talks to children not only legitimizes him, but also gives the children a reason to look up to him. They will inevitably go home and Google him, and here is what they will find. They will see him with international diplomats, with at the time the Prime Minister of Pakistan, and they will see that one of the biggest organizations in the world, Google, has invited him personally to their office in Warsaw, Poland. Now this of course cements his legitimacy to these children. Anything he says or anything he does is safe for children. It is safe for children to follow him. It's safe for children to imitate him. For you to be endorsed by a US diplomat and the Prime Minister of Pakistan and by Google itself, this is the highest level of endorsement. You know, the grooming has been done in part unknowingly by these people. Junaid Akram is essentially using these people as a shield to say, hey, you know, anything I say or do can't be wrong, otherwise I wouldn't be widely accepted as I am. Now this sets a very dangerous precedent,
because Junaid Akram will do things and say things to the children tuning into his channel that are totally unsafe, and it is a lot of times abuse of children. There are over 24 YouTube and Google policies being violated by this man on his channel publicly. Now, you will see later in the video the kind of behavior he exhibits around children in the public eye when he is being recorded and the videos are being published on YouTube. Now, we know, because Junaid Akram himself has told us in his videos, that he does meet with these underage fans that he's got, and we also know that some of them are so obsessed with him that they are doing their college project or their school project on his personality. So one can only imagine in horror the kind of things he's doing with these children when there are no cameras and no eyes watching, just based on the kind of things he will do with children on his channel. Chris, tell me, are there any scholarships that U.S. Consulate Karachi is offering to Pakistani students? Yes, we have a lot of scholarships, and it depends on what level of education you want. So we have some for high schools, some for masters, some for postdoc, and even a doctoral. I've never heard of high school. Tell me about that. The high school one is the Kennedy Lugar Scholarship. It's a lot of people might know it here as YES, as the scholarship YES. It is for high school students to be able to go spend a semester of their high school semesters back in the US. का मतलब एंटी अमेरिकन नहीं है. मैं कभी भी, बल्कि मैं तो एंटी इंडियन भी नहीं हूँ. मैं तो बीजेपी और आरएसएस की जो रेसिस्ट पॉलिसी और जो कश्मीर में इन्होंने किया है उसके खिलाफ हूँ. लेकिन इंडिया में हर किस्म की ये है शफीका इकबाल, जिनका ताल्लुक सादकाबाद पंजाब से है. लाहौर में एज अ डेटा इंजीनियर काम करती थी और कंप्यूटर साइंसेज की दुनिया में उन्होंने बहुत मेहनत की और दिन रात अंथक मेहनत करने के बाद सिर्फ 24 साल की उम्र में गूगल ने इन्हें हायर किया और पोलैंड के शहर वॉर्सो में जो गूगल का ऑफिस है वहां 1300 एम्प्लॉइज में से शफीका वाहिद पाकिस्तानी है जो वॉर्सो ऑफिस. डाइवर्सिटी ऑफ वुमेन हियर स्टार्टिंग फ्रॉम. So I am Tasneem. I am from Bangladesh and I'm working here as a software engineer. Awesome. Hi, this is Julie. I'm from India, Bangalore. I work here as a TSC and maybe you can join us too. Sure. Hi, I'm Mani. I'm from India too and I'm working here as a strategic cloud engineer and hope to see you soon at Google. Aslima, hi, I'm Yasmin. I'm from Tunisia and I'm working as TSC in Google. Hi, my name is Nada. I'm from Jordan and I work as a software engineer at Google. And hi, I'm Shafika. I'm from Pakistan and I work here as a data engineer. And so you can see people from all over the globe are working here. And so can you. So we highly. शफीका ने पहले कोशिश की कि मेरा यहाँ कोई इवेंट करा दें, एवी मुझे फंसा देना था आपने यहाँ पे कि पाकिस्तान के बारे में बताते गूगलर्स को. सो दिस वाज गोना बी, बट खैर मैं बड़ा लास्ट मिनट आया. बट व्हाट एन अमेजिंग फैसिलिटी मैन. जो खाना पीना है दबा के करें, पोलैंड में ज्वाइन करें. और आज मैं वॉर्सो. And I'm originally from Sadkabad, which is the last area of Punjab. So I did my matriculation and FSC from there. Later on, I did my graduation from PUCD, Punjab University. After that, I had like 2.5 years of experience before Google reached out. After Google reached out to me, so for 1 year I worked at QMD and half a year I worked at Northway. Now here's another type of endorsement. Now Junaid Akram is making a video on his main YouTube channel about computing education in Pakistan. But in this video, you can see he's using an image of a sex worker from pornographic films. Now this is very problematic, being as though he is seen as a teacher and a role model to children. He is visiting schools in the day and then he's making videos such as these. But what's more worrying is that the first comment that you see on this video is by a person called Azad. Now Azad has around 2 million subscribers of his own. Now Azad will inevitably have seen this video. That's why he has commented praising the content of this video. Now this is extremely shameful of Azad to do this when he has seen the kind of things Junaid Akram is exposing children to with his own eyes. Now again, here's another endorsement from a person called Zakir. Now Junaid Akram has made a video about Pakistani courses in schools and colleges being outdated, and Zakir has made a commendation on what a great job he's doing. Now unlike Azad, with Zakir we can at least say that maybe he was unaware of what Junaid Akram is up to, but it is regardless an endorsement from a national celebrity in Pakistan. इसमें मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड करूंगा. एंड आई एम ग्लैड बेटा आपने मुझे लिखा है ये बात. स्टूडेंट्स मुझे लिखे एग्जैक्टली आप उनको बताएं. डॉक्टर से और लॉयर से बेटा कभी कुछ नहीं छुपाना. बेटा बेटी जो भी सुन रहे हैं, किसी ज़माने में आई यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ लॉट ऑफ लाइब्रेरीज हियर एंड देयर. तो मैं लोगों से कहता था आपके पास जो बुक्स हैं दादा बुक ही मुझे दे दें, मैं आई विल प्लेस देम हियर एंड देयर. सो उसका एक ब्लॉग बनाया था, वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगा.
इट्स सो फैसिनेटिंग टू सी यार बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एंड आई एम लाइक एजुकेशन व्हेन इट कम्स टू दैट आई एम लाइक आई एम ऑन। हमेशा से मेरे अंदर एक टीचिंग क्वालिटी तो थी और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी टीचर बनने की, मगर रिवायती टीचर बनने की नहीं। प्लीज़ ज़रा ध्यान दीजिए, मेरी फैमिली है फेसबुक और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी हमारा ये। वीडियो इसका बनाने का मकसद ये जगह नहीं, बनाने का मकसद कुछ और ख़ास तौर पे ये यंग बच्चे बच्चियां जो सुन रहे हैं उनके लिए है। भाई देख, आई ट्राई टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑन माई प्लेटफॉर्म्स एंड प्रोड्यूस द काइंड ऑफ कंटेंट ताकि बच्चों को इंस्पिरेशन मिले और दे एंड अप समवेयर बेटर। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो यकीन माने आप लीडर हैं, और आप जिस तरह से जो कुछ भी हमारी न्यू जनरेशन को बताते हैं और गाइड करते हैं, यू आर द बेस्ट। थैंक यू। तो फिर आप एक बड़ी मीनिंगलेस लाइफ जिएंगे। जहाँ YouTube के फ़ायदे बड़े हैं वहाँ YouTube और सोशल मीडिया के नुकसान उससे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल। हमारी यूथ के लिए आप क्या देख रहे हैं, बिकॉज यू बीइंग एन एम्बेसडर फॉर द यूथ की आवाज़ और ये सारा कुछ, सबसे बड़ा मसला हमारी यूथ को क्या फेस हो रहा है? आप जो है ना क्रिएटिव बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें, लोग चाहे एजुकेशन ना भी लेना तो आप उनको पढ़ा देंगे सारा। बहुत शुक्रिया। मुझे एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे एक 14 साल की बच्ची मिली, वो पाकिस्तान की थर्ड रैंकिंग टेबल टेनिस की प्लेयर है। अमेजिंग गर्ल, बहुत अच्छी चीज़। हर फादर टोल्ड मी कि यार मैं अपनी जेब से इसको हर जगह लेके आता हूँ। वो दोहा जा रहे थे। So here Junaid Akram talks about meeting a 14-year-old girl outside of any educational setting, with her father actually encouraging this meeting. तरफ जो कि मरियाबाद में रहते हैं, वहाँ पे फीमेल मूवमेंट भी मुझे काफ़ी नज़र आई, रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी नज़र आई। और इस चैनल पे तो एक जो ख़ास रिसर्च की जा रही है वो एक हज़ारा कम्युनिटी की लड़की हैं, बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं वो, और वो बाकायदा डेटा कलेक्ट कर रही हैं और उन्होंने तकरीबन 150 एपिसोड्स का डेटा निकाला। इनफैक्ट आई मेट हर अभी इत्तफाक से जब मैं मरियाबाद में था। So here Junaid Akram talks about meeting another girl outside of any education setting, and she is doing her school project or college project on his channel. You know, these kids are obsessed with Junaid Akram. They base their entire school projects on him. Writing my thesis on Ask Ganji Swag series. Assalamualaikum Junaid sir, hope this email finds you in the best of health. I wish you more success and accomplishments in your future. Arriving at the point of my email, I'm a student of MPhil English Literature and Linguistics at a prestigious university in Pakistan. As is evident in the subject line, I'm writing my thesis on the series Ask Ganji Swag. Now here is another student who seems to be doing their university thesis on his second channel, which is Ask Ganji Swag. Again, this just shows these students are obsessed with this man. You know, they have taken him as a father figure in their lives. Hasan and Shiti who are running street schools जिनके बारे में मैंने आपको बताया था. So let's talk to them. Government के ऐसे होते हैं, private के ऐसे. And you guys both look pretty young. Are you guys also studying? Yeah. I'm already studying. What levels for us? I'm in grading. Oh wow, mashallah, wow. Here, Junaid Akram again meets with teenagers outside of a school or a formal educational setting. Just notice the boy, being a 16-year-old, didn't excite him much, but the girl, the 13-year-old 8th grader, that he thought was something special. एजुकेशन चैनल पे बड़ा तेज़ी से काम जारी है। आज भी अभी हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हुई एक टीचर के साथ, who will be teaching corporate communication, business ethics, business communication, negotiation, interview skills, very sound professor, PhD हैं, डॉक्टर हैं। अभी उनसे मीटिंग ख़त्म हुई है और फिर मैं यहाँ आया हूँ, really excited। तो हम बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर। So he claims he has just interviewed a professor with a PhD. Doctors are coming and applying for jobs through Junaid Akram. He is an authority in the education industry after hiring this professor along with other real school teachers. He says he will be providing all this educational material for free to every kid on YouTube. Now this creates the false impression that this person really has the children's best interests at heart. मिलके इस कॉज में मेरे साथ हैं। तो मेरा मकसद बस ये है कि यार एक बच्चे को अच्छे टीचर का पढ़ाया हुआ सामान मिल जाएगा ना, तो ये CPU माउस
इसकी ऑल्टरनेटिव हमें एक चीज़ बनानी है, एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी बनानी है कि चलो ठीक है, उसकी मजबूरी है, वो KU में पढ़ता है, वहाँ पढ़ाया ये जा रहा है, लेकिन वो शाम को आके यूट्यूब खोले और वो मेरे चैनल पे जाके अपने अच्छे कॉन्सेप्ट पकड़ ले और आज की दुनिया की चीज़ें पढ़ ले, ताकि वो आज के लिए रेलिवेंट हो, ताकि मुल्क के लिए कोई बेहतर काम कर सके। मुझे सिर्फ आप लोगों की दुआएं और नेक तमन्नाएं चाहिए। और वंस अगेन, अगर किसी की दिल आज़ारी हो, KU इज़ माई, मतलब मैंने भी वही। So in this clip, Junaid Akram claims that if children come home from school and log into YouTube and open up his channel, they will learn things that even their schools don't teach them. The listenership of this show is huge. However, ज़्यादातर लोग इसको सुनते हैं Google Podcast, Spotify, Apple Podcast वगैरह वगैरह. Now, so there's this subscription. It's called Libsyn. उससे होता है क्या है, आप एक जगह अपलोड करते हो और वो आपके वेरियस अकाउंट्स में एक साथ पोस्ट कर देती है. हाउएवर, स्पॉटिफाई हो गया, गूगल और एप्पल का तो मुझे नहीं पता उनका मोनेटाइजेशन क्या है. स्पॉटिफाई का है कि 4000 डाउनलोड्स होंगी तो उसके बाद पहला सेंट आपका बनेगा, एंड इट नेवर हैपन्स. तो लॉट ऑफ जो लीकेज है वो इन ऑडियो चैनल्स के ज़रिए हो जाती है. अगेन, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, द आइडिया इज़ फॉर पीपल टू लर्न फ्रॉम इट. However, So in this clip, Junaid Akram, who is using another alias called Ganji Swag, he claims if you follow his channel, Ask Ganji Swag, you can get to learn things. So let's see in the next clip what kind of things children are learning from Junaid Akram. With the flow of this channel. All right, so first email is from Rahul. He says, sir, I'm from India. I'm 16-year-old studying in class 10. I have an obsessive crush over a girl who is 3 to 4 years older than me. I was very good in academics and so she was, but now her interest in studies are not so much. My studies have also been hampered due to this shit. She used to live near my house 4 years ago and moved 2 years back. Acha, chali gayi. I have obsessive one-sided crush when I was 14. Recently, I told her that I like her and she got surprised as expected and started telling me, पागल हो गए हो. पर सर वो कुछ नहीं कह रही. हम बोलते हैं कि कुछ बोलो तो बोलती है, अब हम क्या बोले. अच्छा, हम चल रहे हैं वहाँ पे और ये बोल के इग्नोर कर देती है. सर, आई नो शी डजंट वांट मी or want to hear my feelings. I want to handle this situation. Kindly help me. I'm waiting for your valuable advice. Should I block her, which I cannot, or get expressive, which I was not earlier? Looking forward to your answer. First of all, बेटा, you're only 16. आप अभी पढ़ाई पे ध्यान दो. देखो अपनी पढ़ाई, ये आने वाले को रोको नहीं, जाने वाले को टोको नहीं. वो सही है. आपकी स्टोरी पता है कैसी है? वो एक फिल्म थी मनीषा कोइराला की, एक छोटी सी लव स्टोरी, which was an exact copy ऑफ मलेना, जो कि मोनिका बेलुची, हम सब का प्यार, हम सब की जवानी की सहारा थी वो खातून. सो अगर आपने मलेना नहीं देखी, यू हैव टू वॉच इट. एवरी गाय कुड रिलेट टू दैट बॉय, क्योंकि 13 साल में हम सब भरे हुए होते थे. एनीवे, तो बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि अभी आपने स्कूल से पास होना है, उसके बाद आपने कॉलेज जाना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाना है. तो आई अंडरस्टैंड दैट यू आर फुल ऑफ इमोशंस राइट नाउ. ये एज ही ऐसी होती है. तो अभी आप यूनिवर्सिटी जाने से पहले नॉर्थ अमेरिका की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लें. थोड़ा आपका दिमाग इधर उधर होगा, बट लाइक डोंट फ्रेट अबाउट दीज थिंग्स. यू आर टू यंग फॉर दिस शिट. अभी तो लाइफ में बहुत सारा एक्शन आना है. Junaid Akram gave a 16-year-old boy some advice. Now in this advice, he tells the boy the name of a pornographic website and tells the boy to visit that website. Now this is not an isolated incident. We'll look at several more incidents like this later in the video. But first, let's just have a few acknowledgements before we get further into this. And yes, I did report this video to YouTube and it's still here. In fact, I reported this video several times and it's still here. That's why I just decided to make my own video to expose what's been going on. आई होप यू गाइज आर फाइन, जहाँ हैं खुश रहें और समर वेकेशन आप इंजॉय कर रहे होंगे. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस. ऐसा हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है कि रिक्वेस्ट आई है कि जी वो सवाल डल तो गया है, लेकिन ये कि अब मुझे डर लग रहा है कि पहचान ना लिया जाए, तो वो डिलीट कर दें. अच्छा,
फेसबुक पे तो ये एपिसोड नहीं जाती हैं, आपको अच्छी तरह पता है, कट्स जाते हैं कभी कभी। यूट्यूब पे ये ऑप्शन अवेलेबल है कि जी 12वें मिनट से 21वें मिनट तक का उड़ा दो, तो यूट्यूब वो उड़ा देता है। उसका रेवेन्यू लॉस होता है, बट खैर है, खल्ली वल्ली कोई मसला नहीं, पैसे और जगह से बंदा कमा लेता है। आप लोगों की सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बीच में हमने इस तरह की 2 बनाई थी, मगर वो हमारी जो एक सेंसर बोर्ड है हमारे अंदर नहीं, हमारी कंपनी में, उन्होंने रिजेक्ट कर दी कि सर ये नहीं जा सकती वरना खल्ली वल्ली करियर तबाह हो जाएगा। ऐसा ही है, पिछली वाली वैसे थी बड़ी टाइट, बहुत ज़्यादा अच्छी थी यार। मैं सोच रहा हूँ वो मेंबर्स ओनली सेक्शन पे लगा दें, जो वेलकम टू द एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग। ये क्यों फ्री की मार्केटिंग हो रही है पानी की? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। साल आपको इमरान खान की भी देता हूं, जिसमें वो अपने जहाज में बैठ के विलियम डैलरिम्पल की एक किताब सिर्फ पढ़ रहे थे। ही नेवर सेड इट्स अ गुड बुक और अ बैड बुक। ये किताब पाकिस्तान में हर दुकान पे सोल्ड आउट हो गई थी। ये होती है पावर एक इन्फ्लुएंसर की, कि उसके बोले बगैर, उसकी सिर्फ किसी जगह मौजूदगी, खा वो किसी रेस्टोरेंट में बैठा हो या किसी ब्रांड के कपड़े पहन के बस बैठा हो, कुछ बोल भी ना रहा हो और अगली चीज सोल्ड आउट हो जाए, ये होती है पावर। मगर आप बार बार एक ही चीज दिखा के पिछले 20 साल ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाती कि हाँ ठीक है, वो फिर शॉक वैल्यू खत्म हो जाती है, क्योंकि जब आप एक चीज रोज देखोगे उसकी शॉक वैल्यू खत्म। तो बाथरूम में साइड में इस तरह का ग्लास रखा हुआ था। आपने देखा होगा होटल में भी आप अपना टूथब्रश जो है घर में भी ग्लास में रखते हैं। अब उसमें मियाँ तो अपना टूथब्रश इस्तेमाल कर रहा है, बीवी का था और 2 बच्चों के थे, ठीक है, तीनों मुख्तलिफ कलर के, मुख्तलिफ साइज और शेप। इस छोटी सी बात पे कि टूथब्रश का मुंह जो बीवी का है उसका यूं होना चाहिए, यूं होना चाहिए, इस पे आर्ट डायरेक्टर और डायरेक्टर की इतनी लड़ाई हुई, इतनी मुंहमारी हुई कि मतलब बदमजगी होते होते रह गई थी। और मैं वहां खड़ा ये सोच रहा था यार ये तो इतनी सी चीज है, इससे क्या ही हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि मैं खुद इस फील्ड का हिस्सा हूं तो मुझे अब अंदाजा हुआ है कि हर चीज जो है केयरफुली क्यूरेटेड होती है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना कि कौन से रंग की लाइट कहां से आनी है और कौन से रंग की लाइट कब बजनी है, किताबों की प्लेसमेंट क्या है, ये प्लेसमेंट क्या है, लाइटों की प्लेसमेंट क्या है, ये सब केयरफुली क्यूरेटेड होती है। एलिगेशंस वगैरह मैं खामोश नहीं हूँ इस पे। मैंने देखें एक चीज सीखी है ना इंटरनेट से, वो ये है कि इंटरनेट पे आपने किसी से आर्ग्यू नहीं करना होता। किसी को मसला है, ठीक है भाई, लीगली डिस्कस कर लेते। तो मैंने पहली ही फुर्सत में FIA में कंप्लेन कर दी थी। FIA बैठ के सारा कुछ मॉनिटर कर रही है, कौन क्या है, स्मेयर कैंपेन कौन चला रहा है, ये सारा हो रहा है काम, ठीक है। दूसरा, मैंने लीगल नोटिस भेज दिए उन अखबारात को जिन्होंने विदाउट एनी वेरिफिकेशन किसी का भी कुछ उठा डाल के कि भाई ये जुनैद साहब है और ये इनकी हरकतें हैं, तो उनको लीगल नोटिस जा चुके हैं, ठीक है। तो वो भी बैठ के उसको देख रहे हैं, क्योंकि अनवेरिफाइड स्टोरीज आप इस तरह नहीं डाल सकते कि किसी ने भी प्रोफाइल बना के भेज दिया कि भाई ये और आपने डाल दिया। अगर ऐसा तो ऐसे 10 प्रोफाइल मैं बना दूं किसी के भी खिलाफ कि भाई जो फलाना आदमी इसने ये किया या फलाने खातून ने किया, तो ऐसे तो नहीं चलता ऐसे हिसाब किताब। तो लीगल नोटिस चले गए और FIA की अपनी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे जैसे ये अनफोल्ड होगा आई विल अपडेट यू गाइस, डोंट वरी, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं। ओके। Now, when the Me Too movement got popular, it also gained traction in Pakistan. Now, several women came forward and made allegations of sexual abuse towards Junaid Akram. One of these, quite worryingly, was a woman who he met at a university where he gave a speech. And here's just a little video that gives a background story. You can Google this video if you wish, but I'm not going to put it in this video because it's just going to make the video longer than it already is. Now, what's worrying here is the fact that this alleged victim claims that she met him through a university speech. So we already know what he's doing in the public eye on YouTube for everyone to see. And here we can get a glimpse of what's happening behind the scenes. This is what
what really worries me, that something far worse is happening that we're not aware of off the screen. हाँ हाँ 80s 70s का ड्रामा है. Oh sorry 1969. Nice. ठीक है. और अगर आपने गलत जवाब दिया you lose everything. Oh. Yeah. No, that's a lot to lose. I think I'm going to pull out like I always. Okay. अच्छा, you going to quit then? Yeah. Okay. बिल गेट्स को क्या जरूरत है किताबें पढ़ने की? जी. दुनिया का सेकंड अमीर तरीन आदमी है, लेकिन देखे ना वो यही वो दिन और आज का दिन वही टेस्ट है. जरा टेस्ट नहीं बदला यार. जरा यहाँ के बच्चे इतने हरामी हैं. अभी एक बच्चा मुझे बोल गया वो गंजे. लास्ट ईयर में नाड़ा ढूंढता फिर रहा था. वो नाड़ा मैं अपने लिए ढूंढ रहा था और मैं इस किस्म का ढूंढ रहा था कि वो निकाह के टाइम बंद रहा और बाद में आराम से खुल जाए. बिकॉज यू नो आनंद सिक्योर. अब हमारे यहाँ मैंने एक बार बोला था इंस्टाग्राम पे, मैंने बोला कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नॉट शेयर एक्सप्लिसिट फोटोज विद योर पार्टनर व्हाटएवर. इफ यू मस्ट तो शक्ल नहीं दिखाओ. लोगों ने बोला आप तो प्रोमोट कर रहे हैं कि जी आप नंगी तस्वीरें भेज. मैंने नहीं कहा ये. मैं कह रहा हूं कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बार जो इंटरनेट पे चीज चली गई इट्स देयर फॉर एवर. फिर आपके बच्चे सर्च करेंगे कि अम्मी का अकाउंट कौन सा है, तो फिर क्या क्या ना निकला है. नेक्स्ट टाइम किसी ने गालियां दी उसका आईडी में लगा के पेस्ट कर दूंगा, भाई ये है, रिपोर्ट करो. जब 4,38,000 वाले 4,78,000 अकाउंट वाले अकाउंट पे जब लग जाएगा ना 2 मिनट में अकाउंट बंद हो जाएगा. ओके. दूसरा जो है कचरे के ऊपर, आई एम लाइक ये जो गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियों से इतना सारा कचरा बिकता ना, उनकी पब्लिक शेमिंग और लाइक बिल बोर्ड्स के साथ. अरे वाह. बिल बोर्ड्स लगे होंगे, स्ट्रीमर्स लगे होंगे, जैसे चाइना में होता है ना, आप जे वॉकिंग करे सामने तस्वीर आ जाती है. तो थोड़ी पब्लिक शेमिंग की बहुत जरूरत है. और नंबर लाइक यू नो माय गुड फ्रेंड स्टीव, हिज फादर हैड पास्ड अवे एंड हम लोग यहाँ गोरा कब्रिस्तान में थे एंड एक लड़का आ गया, तदफीन चल रही है. अब वो ज़ाहिर है स्टीव की फैमिली वाले थे. अब ज़ाहिर है मैं उनको मौका दे रहा था, यार आप लोग आगे जाएं, आप लोग देख लें वो मिट्टी विट्टी डालने वाला सिलसिला जो भी है. आई डिड माई प्रेयर्स और मैं पीछे हट गया और एक साहब आए, वो कह रहे जी तस्वीर खिंचवानी है. एंड आई एम लाइक यार कब्रिस्तान में. आगे से उसने पता क्या बोला, खैर है गोरा कब्रिस्तान है ना. आई एम लाइक यार दिल किया उसको मार के ना मैं वहीं दफना दूं. यार इतना स्टूपिड आदमी इस मुल्क में कैसे घूम रहा है, क्यों जिंदा है ये वैसे लोग. So I was deeply disturbed by it. और फिर मैं okay, I'm not pro violence, but violence gets a lot of shit done. Pyramids ऐਵੇਂ नहीं बने थे. Every great thing has a lot of violence behind it. इश्यूज होते थे ना, वो गन पॉइंट मैरिज वाली कहानी याद है जो मैंने सुनाई थी भाई. वो एक साहब थे, अब कहना नहीं चाहिए बात, बिल्कुल ही फारिग. तुम मुझसे शादी कर रहे हो कि नहीं कर रहे? तो नहीं बोला देखो तुम्हें मैंने समझाया है ना, मजबूरियां होती हैं, ये होता है. उतनी देर में खातून ने पर्स खोला, अंदर से टीटी निकाली. वो लोड की, बोला कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं. जब उन्हीं ने टीटी देखी और लोड होते देखी, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो तुम ही चाहता हूँ. कभी कंप्लीट नहीं किया. उन्होंने बोला मैं उर्दू बाजार आऊँगी ईद कार्ड लेने, तो फिर वही तो पैसा कमाना है ना भाई, पैसा कमाया हुआ है. और यहाँ पे मैं शीशा पीता हूँ भाई रात में आके, नॉट इंडोर्सिंग शीशा, बट ये कि यार अब सिगरेट छोड़ दिए तो कहीं ना कहीं से पूरे करने. उसे मैंने देखा था ये वाली खिड़की में, ये वाली आंटी खड़ी सिगरेट पीती है. मैं बोला क्या वाइब आ रही होगी ना वहाँ से, हिस्ट्री में तारीख पे खड़ी होके सुट्टा मार रही. ओहो यार छोड़ो यार अभी कंपैरिजन. यहाँ मैं रोज़ शीशा पीता हूँ, अभी ऑर्डर कर दिया है, जितनी देर में बना रहा है. मैं ज़रा ये वाली गली आपको चेक करा दूँ. मिडिल चाइल्ड के साथ बाहर था एंड आई सॉ दिस गर्ल स्मोकिंग. मैंने उसको यही बोला कि यू नो व्हेन आई सी पीपल स्मोक आई रियली फील लाइक यू नो आई टेक अ पफ. लेकिन जी मैं आर्किटेक्ट हूँ.
क्या बनाते हो? बिल्डिंग डिजाइन करता हूँ। अब जाहिर है आर्किटेक्ट बिल्डिंग ही बनाएगा, चर्च तो नहीं बनाएगा भाई। कराची में तो हमने एक बनाई थी एक्सपेरिमेंट, एक शो का पायलट बनाया था, वो फिर शो कभी बना नहीं, 5-6 साल पुरानी बात। उसमें हमने यही चीज़ दिखाई थी, 8-8 साल के बच्चों को हमने खोखे पे भेजा था, कैमरा दूर लगाया था, सिगरेट दे रहा था वो दुकान वाला, क्योंकि अक्सर यही होता है ना, बाप अपने बच्चों को भेजता सिगरेट लेकर आ। और अगर आप दोस्ती वाला एंगल रखें ना, तो मेरा तो ये मानना है कि मैं अपने बेटे को ये बोलूँगा कि जो भी करना हो मेरे सामने करना, तो वो फिर कोई ऐसी ही चीज़ करेगा जो मेरे सामने कर सकता है, तो ऐसी चीज़ नहीं करेगा। बिल्कुल। और अगर आप दोस्ती का एलिमेंट जिंदा रखें ना, तो बहुत सारे चीज़ें खुद ही एड्रेस हो जाती हैं। बिल्कुल सही, वो नौबत ही नहीं। अच्छा, जैसे आप इसमें के ऊपर होता है, आप कैसा माहौल देते हैं बच्चे को, और बच्चे का वैल्यू सिस्टम आप क्या बनाते हैं। अब हमारे बच्चे हैं, उनके दोस्त हैं, वीड पीते हमारा बच्चा हाथ नहीं लगाता उसको, ठीक है। अव्वल तो खैर कोशिश करते हैं कि भाई उठना बैठना ही ना करो, ऐसी उसमें बंदा क्यूरियोसिटी में लगा ही लेता है, लेकिन ये कि हम वी कीप अ चेक, बच्चा कब आ रहा है कब जा रहा है, ये चीज़ें देखनी पड़ती है। स्टिल डूइंग इट। हाँ, गेट द फंक आउट याद है, 91-92 में था। शिट यार, एज वाली एज जो होती है वो बड़ी ख़तरनाक होती है, एक्सपेरिमेंट की एज होती है। बच्चे सिगरेट से शुरू होते हैं, आइस पे चले जाते हैं, बिल्कुल स्लिपरी स्लोप है, और फिर बहुत सी एडिक्शंस ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो हार्ड ड्रग्स हो, या आपकी नॉट सो हार्ड ड्रग्स हो, हैश हो, कुछ भी हो। बैठे हमारे यहाँ बहुत सारे इस तरह के। तो एडिक्टीज फ्रॉम गार्डन ईस्ट पे भाई हम खाते थे बिग बाइट के रोल, अगर आपने नहीं खाए तो ज़रूर जाके खाएं, और वहाँ पे मिलती है एप्पल साइडर। उस बोतल पे कोई नाम नहीं होता, वो दिखने में कुछ और लगता है, लेकिन डोंट वरी, एप्पल साइडर है। अच्छा, मैं इतना डीप आदमी हूँ नहीं जिस तरह के आप फिलोसॉफिकल सवाल कर रहे हैं। नहीं, सुपरफिशियल सवाल पूछूं। चरस पीते हैं? नहीं पीते चरस। ट्राई जरूर की है, एज अर्ली एज 3 दिन पहले। 3 दिन पहले आपने पहली बार चरस? नहीं, पहली बार नहीं, बट लाइक कभी व्हाटएवर, बट लाइक नहीं पीते हैं। टोटल बता दे, कुछ नहीं होगा। नहीं, मुझे क्या डर, मेरे हिल से यार। सही है, ठीक है। तो जुनैद जो है वो कभी कभी चर्च पीते हैं, ये 3 दिन छोड़ के। 3 दिन छोड़ के 3 दिन हो गए ना चर्च पिए हुए। अच्छा, रोल तो कर लेते हैं? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है, बस दोस्त हो क्या रहा है, आप बैठे रहते हैं, लोग आगे मुंह में सिगरेट डाल देते। नहीं, ऐसे नहीं। अब जैसे उस दिन दोस्त आया हुआ था, ठीक है, उसने बोला चल यार रोल करते, मैंने ठीक है कर लो, वो अब करने लगा, मैंने 1-2 कश लिया, मैंने ठीक है व्हाटएवर। मुझे नशा कभी समझ ही नहीं आया। दोस्त आया, बोले यार चल लाइनें लगा देता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम पता कहाँ मिला था, यहाँ अवारी टावर की गली में एक साइबर कैफे था। ना वो गेमिंग कर रहा होगा। ना साइबर कैफे था, और ये मैंने काफी इंटरव्यूज में बात भी कही है। तो वो ना, हम लोग अपने क्यूबिकल में थे, मैं और मेरा कजन, हम लोग गंदी तस्वीरें देखने गए थे, राइट। और उधर मैं देखा, उससे बोला भाई ये तो वो है ईपी वाला। मैंने झांका तो वो सीडी देखी है कभी किसी ने? अबे रेनबो सेंटर वाली नहीं, सीडी। वो रेनबो सेंटर की कोने गली में आवाज लगा देना, आजा भाई दिखा दे आपको डबल प्रोग्राम, कुछ वो वाली सीडी नहीं, सीडी प्रोग्राम वो भी होते, मगर ये अभी इधर ये वाली प्रोग्रामिंग कर लो बेटा पहले। सारा दिन खोल के नहीं बैठना, तुम्हारा मुंह नहीं हर वक्त खुला रहेगा, बंद भी करना होता है, बिजली खाता है। हाउ टू शट। I don't know if people know, but कराची में सॉफ्ट पोर्न सिनेमाज होते थे किसी जमाने में, पेशावर में भी होते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट अभी। मिनिस्टर साहब थे, उनके होते थे। फेयरली रिसेंट है अभी भी, ठीक है। तो इमेजिनेशन में कैरी किया उन्होंने, इमेजिनेशन में कैरी किया। मैं तो आपको ये भी बताऊं कि अभी रिसेंटली कुछ लोग बात कर रहे थे आपस में उसी सिनेमा की, अंकल सरिया के पास वाली। तो रीनो था, और उसके आगे गोडियन भी था। तो 2 उधर की वाकये सुनने में मिले। Now, before we look at the actual videos, we can just look at some of the thumbnails. You would think that he would be promoting these pornographic films somewhere hidden within his videos, but he does this brazenly in his actual thumbnails as well as some of his titles. This first thumbnail is actually an animated pornographic film from India, and the following thumbnails, I'm sure, are also pornographic. Again, this is definitely not the kind of things a teacher running an educational channel for children should be putting on his thumbnails. This is clear violation of YouTube's thumbnail policy.
Now, despite Andrew Tate being banned from YouTube, Junaid Akram has promoted him several times on his channel. are going free Tate brother भाई free Tate का भी हैशटैग चल रहा है हमारे इंस्टा पे. अल्लाह ताला एंड्रू टेट को के लिए आसानियां पैदा करे और ट्रिस्टन को भी जल्द रिहाई दे. Now here you can see he's just made a video with the thumbnail advice for the youth, and then just one video after you can see what thumbnail is. Now, as we know, Junaid Akram also has another alias, which is Ganji Swag, and we also know that children as young as 3 are aware of this brand. My son is 3-year-old. Every time I play your video, he starts screaming, Ganji Swag, Ganji Swag. That's how big you've made. Oh, so sweet. So Ganji Swag is Junaid Akram's brand. That's his alias. Let's see how he promotes his alias that even children as young as 3 are aware of. चैनल पे आएगा. क्या नाम है आपका? फेंक दी. अबे बंद कर दी पूरी वेबसाइट. रिसर्च का इतनी बड़ी, अरे भाई नॉलेज हब है वो. एक दूसरा हब है जहाँ पे हमारे लौंडे पहुंचते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे वो मुल्क को अमेरिका ने तबाह कर दिया और नौजवानों को नॉटी अमेरिका ने तबाह कर दिया. वो दिन और आज के दिन वही टेस्ट है. जरा टेस्ट नहीं बदला यार. जरा यहाँ के बच्चे इतने हरामी हैं. अभी एक बच्चा मुझे बोल गया वो गंजे. यहाँ हुई क्लास खत्म. इंशाल्लाह अगला टॉपिक बायोलॉजी. उसमें हम रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ाएंगे. क्या लेना देना आपका रिप्रोडक्शन से? बस हो गए आप रिप्रोड्यूस, सीख जाएंगे खुद ही. जेना जेमिसन सिखा देगी आपको, हमने नहीं सिखाना. बच्चों को कुछ चाहिए वो स्पॉटिफाई पे चले जाते हैं, वो यूट्यूब पे चले जाते हैं, बार बार सुन लेते हैं. तो स्केर्सिटी जो होती है ना, कि किसी चीज की कमी का होना. आजकल के बच्चों, क्योंकि हम अब एबंडेंस के इकोनॉमी में रहते हैं ना, हर चीज़ बहुत ज़्यादा सही बात है. टू मच अवेलेबल हर चीज़ बहुत ज़्यादा. तो इन्होंने ना वो चीज़ें फील ही नहीं की. जैसे मैं डॉक्टर सोलंकी आए थे, हम लोग बात करते करते वो पॉइंट पे बात निकल गई कि हाउ वी यूज्ड टू कंज्यूम इट. दोस्त का घर खाली होगा, फिर वहाँ से लेंगे, छुपा के लेके जाना है. अब तो सबकी जेब में, सब बिल्कुल सही है. तो उसकी वो इंट्रिंसिक वैल्यू खत्म हो गई. तो ये पीपल शुड नो कि जो द थिंग्स यू आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड राइट नाउ. आप गए, आपने कोई घटिया साइट खोली और देख के खुश हो गए और दोस्तों को दिखाई और हा हू किया. वो करने के पीछे कितनी मेहनत और कितनी ख्वारी थी एक ज़माने में. बहुत ज़्यादा. टीनेजर लड़का है, उसको सिखाना चाहिए. उन्होंने कंप्यूटर ले दिया उसको, अपना पुराना कंप्यूटर दिया, मॉनिटर खरीद के. तो मैं अक्सर उसके गुजर रहा होता तो देखता था कि वो, मैंने नोट किया उसने मुझे फेसबुक पे ऐड कर लिया बहुत जल्दी. स्वीट. थोड़ी बार देखा वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का फ़ैन है. फुटबॉल नहीं देखता था मगर फॉलोइंग द ट्रेंड्स. मैन यूनाइटेड का फ़ैन है. थोड़ी देर बाद देखा वो विक्टोरिया सीक्रेट का भी फ़ैन था. थोड़े दिन बाद मैं वो छत पे जाता तो आवाज़ें ऐसी आ रही थी, ओ आई शुडंट गो अप राइट नाउ. ओके, ही इज गेटिंग सेक्स एजुकेशन राइट नाउ. सो एवरी मास्टरपीस हैज दैट चीप कॉपी. ये जैसा कि आप देख रहे हैं, जॉनी सिंस वो पिज़्ज़ा लेके गए होंगे. अच्छा, पिज़्ज़ा देने आता, सॉस भी दे आते हैं. सॉस नहीं भूलते भाई, केचप वेचप सॉस के पिज़्ज़ा देते हैं. 10 मिनट देते हैं तो उसकी नॉट. If somebody was having really loud sex और मैं यहाँ बैठा हुआ सोच रहा था कि चलो किसी को तो मिल रहा है. वो इसी चीज़ की एक एक्सटेंशन होते हैं. चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. देयर इज दिस थिंग कॉल्ड ऑटो एरोटिक एस्फिक्शन. ठीक है, ASPHYXATIUN, राइट. ये क्या होती है? अगेन मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा, कोई मैं यहाँ पे उसकी प्रचार नहीं कर रहा. मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ, आपकी नॉलेज के लिए जा रहा हूँ. इसमें लोग क्या करते हैं कि पीपल टाई देमसेल्व्स, ठीक है ना, अपना गला बांध देते हैं. एंड एज देर रीचिंग द क्लाइमेक्स, तो वो नॉट को टाइट करते रहते हैं, अपनी एयर वेव को
एयरवे को ब्लॉक करते रहते, क्योंकि वो जितना ब्लॉक करेंगे प्लेजर उतना ज़्यादा होगा, ठीक है ना। झाड़े में वो लोग पकड़े भी जाते हैं, फिर वो उगाने के लिए वहाँ चुग रहे होते हैं, वहाँ पे दाना चुग रहे होते हैं लोग, समझ रहे हैं आप। वेडिंग फोर्ट ये ठीक है, फेयर इनफ भाई। लोगों की होती है ना, कोई मिल फंडर होता है, कोई पेटीट लेटीना ढूंढ रहा होता है, कॉलेज वॉलेज, सबका अपना अपना है। एक ट्रेलर नजरों से गुजरा कि जी वो कोई शादी हो गई है लड़का लड़की की, तो नानी अम्मा आके बता रही है ये तो बहन माई है। मतलब क्या चल रहा है ये, कोई स्टेप डॉटर क्या चल रहा है, स्टेप सिस्टर चल रहा है। ये किसी ने रात को कुछ देखा है और बोला यार ये तो बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसको मैं देसी वर्जन बना देता हूं। अब बाहर मुल्कों में होती है वॉशिंग मशीन अच्छी वाली, फ्रंट लोड जिसको कहते हैं, लोड कुछ और ना समझना, फ्रंट लोड जिसमें आप अपना डर्टी लोड डालते हैं, नो पन इंटेंडेड। उसमें दोषी साहब फंस जाती हैं, फिर कहती है हे ब्रो आई एम स्ट्रक प्लीज हेल्प। वो हेल्प मांगती है, वो अपने आप की अपनी हेल्प कर लेता है। तो किसी ने ये चीज देखी, बोला यार अब इसको मैंने नॉर्मल करना है, देसी वर्जन। अब देसी वर्जन देखें, यहां पे फ्रंट लोड वॉशिंग मशीनें नहीं होती, आम आदमी के घर में नहीं होती, तेरे घर में है, सबके होती हैं टॉप लोड। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, यहाँ पे ज्यादातर, ये तो हमारे घरों में सैमसंग डॉलन्स की मशीनें हैं, आम घरों में नेशनल की स्टील वाली जो फैसलाबाद में बनती हैं, जिसकी मोटरें यहाँ गिजरी पे सही हो रही होती हैं, बड़ी वाली मोटर भारी। अब उसमें कोई स्टक तो हो नहीं सकता हे स्टेप ब्रो, क्योंकि वो उसका मुंह बड़ा होता है, और फिर यूं ऊंधा होके कौन डालता है कपड़े तो यूं फेंकते हैं ना, यूं करके कौन डालता है, इट डजंट मेक सेंस। अब उसका बनाना है देसी और गरीब वर्जन। है तो गरीब, रजाई बहन भाई, गरीब होता ही रजाई के अंदर है, तभी तो बढ़ता रहता है, क्योंकि रजाई के अंदर है ना, तभी तो बढ़ रहे हैं। इनको रजाई से बाहर निकालना है। वो भाई कोई कह रहे हैं रजाई बहन भाई है, इस पे मैंने देखा तो पता चला अगर ब्रेस्ट फीडिंग 1 माह से कर दी जाए तो वो उसको बना था। हमारे ड्रामों में लोकेशंस आती थी, बाहर जाके बनाए जाते थे। अब तो सबने बंगले ले लिए, उसी बंगले में वहां कोई पिट रहा है, वहां कुछ और हो रहा है, वहां बहन भाई लगे हुए, वहां साला साली लगे हुए, ऊपर वाले माले पे सुसर लगा हुआ है। ये खुराफात जो है ना, ये hubchowki.com से आ रही है, मुझे तो ये लग रहा है। ये राइटर्स बैठे हुए वहां पे रात में और कह रहे हैं यार टॉपिक तो अच्छा, बस इसको देसी करना है। हे स्टेप फादर व्हाट आर यू डूइंग, वही उर्दू में करना है बस उसको, और वही हो रहा है। कोई ढंग का ड्रामा बनाओ यार, है मैं कह रहा। स्क्वाड गेम वाले हैं ये, तो ये स्क्वाड गेम वाले हैं, ये स्क्वाड गेम वाले हैं, ये स्क्वाड गेम वाले हैं। ये विक्टोरिया सीक्रेट जो जा रहे हैं उनको क्या एडवाइस देंगे आप, वो क्या करके जाएं? वो VPN चेंज करें घर पे, 1 घंटा VPN लगा लें और फिर विक्टोरिया सीक्रेट जाएं। Next one. Assalamualaikum. I hope you're doing well. Been listening to your podcast for a very long time and I really appreciate the information you provide us through your podcast. Surprisingly, my question is not related to anything that involve relationship stuff. Acha, sare is tarah. Alright, next one. Not spending time with parents. Hello, Junaid bhai. I'm a big fan of you and I've been listening to most of your podcasts and the Q&A series. It's great that it's available on Google Podcast and I can listen to it while driving or riding my motorbike. Alright, I can listen to it while driving or riding my motorbike. Usually there are a lot of sex related questions and it's good to know about different problems that people face after marriage. नहीं, a lot तो नहीं होते, equal balance ही होता है, हर किस्म के सवाल होते हैं। हमने इस तरह के कभी कोई ड्रामे भी नहीं बनाए ना जो इंस्पायर करे बच्चों को। आप मुझे बताएं 70 चैनलों में कोई एक साइंस का प्रोग्राम आता है इस मुल्क में? इस मुल्क का साइंस से कोई लेना देना ही नहीं है। कोई बच्चों का प्रोग्राम आता है, कोई क्विज कंपटीशन आता है, कुछ भी नहीं। ले देके एक ही आता है, वो भी रात 11 बजे आपका भाई शुरू कर रहा है, उसी में कोई 4 सवाल होते हैं, वरना उसके अलावा कुछ भी नहीं आता। ठीक है, मैं वो सर हैव यू एवर टेकन अ डेट ऑन अ बाइक? बहुत बार, और खड्डे वाले रोडों पे फोकस किया है। उसी वक्त हमने जो है शुक्र अदा किया है कि इतने खड्डे हैं, बार बार ब्रेकें लगती हैं, करंट आता रहता है। My son is 3-year-old. Every time I play your video, he starts screaming, "Ganji swag, that's how big you've made." Oh, so sweet. तो वो सुबह 4 बजे उसको मैसेज कर रहे हैं, मेरा फोन नहीं आया है, कॉल आई। यार ना करे यार, ऐसा तो ना करे, सुबह 4 बजे। ठीक है, अगला ऑनलाइन है, तुम्हारे लिए ऑनलाइन थोड़ी है। वो लीना पॉल में अपनी चाहत ढूंढ रहा है। टेट ब्रदर भाई, फ्री टेट का भी हैशटैग चल रहा है हमारे इंस्टा पे।
अल्लाह ताला एंड्रयू टेट को के लिए आसानियां पैदा करे और ट्रिस्टन को भी जल्द रिहाई दे। अबे क्या आधा मुल्क बीबीए करेगा तो जाएगा कहाँ? बाहर जाएगा। बाहर जाएगा? बाहर कहाँ जाना है तुमने? यूएसए। सीधा यूएसए? जी। किससे मिलोगे यूएस पे? डैनी डैनियल से? हाँ, बड़े हैरान हो रहे, उसको नहीं पता, शरीफ बच्चा है। चलो भाई, बहुत 2 आंसर दिए हैं मैंने इंस्टा पर। एक भाई कह रहा है मेरी 3 बीवी 8 बच्चे हैं, मुझे कुछ दे दें। बेटा तू कॉन्डम ले ले, तुझे यही दे सकता हूँ मैं। इसमें गिग्स लगाऊंगा और फिर इसके बाद गिग्स ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाए इंशाल्लाह, उसमें कीवर्ड रिसर्च करके लगाऊंगा। तुम्हें ये सब सिखाया है किसने? यूट्यूब। भाई मैं हमेशा कहता हूँ यूट्यूब से बड़ी यूनिवर्सिटी कोई नहीं है, बट तुम वहाँ पे जो है ना कुछ और ढूंढ रहे हो, सवित्रा भाभी ढूंढ रहे हो। ओ भाई ये काम की चीज़ें ढूंढो, ये देखो इसने ढूंढ ली ना। नाड़े बेच रहे होते हैं। मैंने एक बंदे को बोला भाई तू नाड़ा क्यों बेच रहा है? नहीं, एक बंदे ने आके बोला सर खरीद ले नाड़ा। मैंने क्यों? कह रहा सर सुबह से नहीं बिका। मैंने बेटा तू चारों तरफ देख, किसने शलवार कमीज पहनी है? किसी ने भी नहीं पहनी हुई। तो मैंने बोला तू नाड़े बेच रहा हो भी रात 11:30 बजे। मैंने बेटा ये नाड़े खोलने का टाइम, तू नाड़ा बांधने के कह रहा है। अच्छा भाई, एक बार मैं डिफेंस में रात 11 बजे दोस्तों के साथ चाय पी रहा था, एक बंदा आ गया नाड़ा बेचने। मैंने बोला भाई मार्केटिंग रिसर्च कोई चीज होती है, चारों तरफ देख किसी ने शलवार कमीज पहनी है, नहीं पहनी, सब पैंट पहन के बैठे हैं, तो तू यहाँ नाड़ा बेच रहा है, गलत चीज बेच रहा है। दूसरा टाइम देख, रात के 11 बज रहे हैं, नाड़े खोलने का टाइम है, तू कह रहा बांध। भाई एक बार मैं डिफेंस में रात 11 बजे दोस्तों के साथ चाय पी रहा था, एक बंदा आ गया नाड़ा बेचने। मैंने बोला भाई मार्केटिंग रिसर्च कोई चीज होती है, चारों तरफ देख किसी ने शलवार कमीज पहनी है, नहीं पहनी, सब पैंट पहन के बैठे हैं, तो तू यहाँ नाड़ा बेच रहा है, गलत चीज बेच रहा है। दूसरा टाइम देख, रात के 11 बज रहे हैं, नाड़े खोलने का टाइम है, तू कह रहा बांध लो, खोलने का टाइम है ये। तो कह रहा सर आप ही मशवरा दे दे, मैं इस मोहल्ले के हिसाब से, इस लोकेलिटी के हिसाब से क्या चीज बेचूं जो बिकेगी। मतलब बेटा चर्स बेचो। लाए भाई कॉल ले। तो वो बताएं ज़रा, ये ऊपर कोई वॉर सीन डिपिक्ट हुआ हुआ है। वैसे बेल्जियन एम्पायर भी जो है, एम्पायर तो खैर नहीं थी, बट किंगडम जो है बहुत पुरानी है और इनका बड़ा सिग्निफिकेंट रोल रहा है यूरोपियन हिस्ट्री में। बिकॉज यूरोपियंस ऑन द अदर हैंड दे यूज्ड टू ड्रिंक वाइन, और वाइन का चूँकि कलर बड़ा अपीलिंग होता है तो वो टी कप में नहीं पी जा सकती, वो ग्लास में पी जाएगी। तो उन्होंने ग्लास इन्वेंट किया। जब उन्होंने ग्लास इन्वेंट किया, उन्होंने बोले ग्लास को हम कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं। उस ग्लास से माइक्रोस्कोप बनी, उस ग्लास से टेलीस्कोप बनी तो वो फल्कियात में निकल गए। उस ग्लास से जब ग्लासेस बने, मैंने एक बात मुझे पता चली कि मंगोल्स जो निकले मंगोलिया से और दुनिया को जाके उड़ा दिया उन्होंने, दे वर द बेस्ट फाइटर्स, फाइटिंग फोर्स एवर। क्यों? उसकी मेन वजह पता क्या थी? जिस तरह आपने कहा ना कि गोरों ने ग्लास को परफेक्ट कर लिया था, और मैंने कहा कि जी वो शिपिंग में बड़े अच्छे हो गए थे, शिप बिल्डिंग में। मंगोल्स की क्या थी साइंस कि एक ज़माने में क्लाइमेट चेंज तो पहले भी हो रहा था। मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन इसीलिए ख़त्म हो गई थी कि क्लाइमेट मानसून मिस कर गया था उनको फ्यू ईयर्स इन अ रो। या इट्स ऑलवेज बिन हैपनिंग, क्लाइमेट चेंज इन फेजेस। एक फेज में क्या हुआ कि मानसून जो है वो इंडस वैली को एस्केप कर बाईपास करके समहाउ पहुंच गया, सेंट्रल एशिया पहुंचना शुरू हो गया। ओवर अ पीरियड ऑफ 50 to 60 ईयर्स इतनी बारिश हुई सेंट्रल एशिया में, जो कि डेजर्ट प्लेन्स होते थे, द टिबेटन स्टेप एंड ऑल दीज एरियाज, इतनी बारिश हुई कि वहाँ पे घास ही घास निकल आई। जब बहुत ज़्यादा घास निकल आई तो उस वक्त तो करेंसी थी घोड़े। घोड़ों की पॉपुलेशन वेंट 500, 600,000 टाइम्स मोर। हर ट्राइब की करेंसी घोड़े थे। अब हर ट्राइब अमीर हो गया, हर एक के पास इतने घोड़े हैं कि अब क्या आपस के झगड़े वगड़े। तो सारे ट्राइब्स ने अपने झगड़े ख़त्म कर लिए, सुलह हो गई और यूनाइट हुए। चंगेज़ खान ने कहा यार ये इतने घोड़े हैं विच वर लाइक हेलीकॉप्टर्स बैक देन, इनसे क्या करें यार, दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। चाइना ने इतने पैसे बना लिए। या बल्कि ऑल्सो वन मोर थिंग, यूरोप में तो अब 4 day a week शुरू हो गया है, वर्क वीक 4 days।
3 दिन का वीकेंड। इसकी पाकिस्तानी करेंसी बहुत इंक्लूसिव है। इंक्लूसिविटी का मतलब है कि वो प्रैक्टिसेस और वो प्रोसेसेस को शामिल करना जिससे डिफरेंटली एबल्ड लोग हो गए या माइनॉरिटीज के लोग हो गए, तमाम मार्जिनलाइज लोगों को इक्वल एक्सेस और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। अब जहां एक तरफ हमारे बैंकों में व्हीलचेयर रैंप इस तरह दिखते हैं, वहीं स्टेट बैंक के जारी करदा नोटों में एक बड़ा जबरदस्त फीचर है जो कि मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। स्टेट बैंक ने जो नई करेंसी जारी की है उसमें एक बहुत जबरदस्त फीचर है जिसके जरिए नाबीना लोग नोटों की पहचान कर सकते हैं। अब आप खुद सोचें, तकरीबन एक भाई ने बोला स्टमक ऑर्गन नहीं होता, बोन्स भी ऑर्गन नहीं होती भाई।